हम डिस्कस करेंगे आज क्वांटम नंबर्स। हमारे पास हमने पढ़ा था ऑर्बिटल्स। एटम जो है उसमें बहुत सारी ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स, व्हाट इज एन ऑर्बिटल? आपको पता है ऑर्बिटल is the region is a 3D is a region in space, in 3D space where the probability of finding the electron is maximum, यानी इलेक्ट्रॉन के पाने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर। सो एटम के अंदर बहुत सारी ऑर्बिटल्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द एटम। अब जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको हम कर सकते हैं, वी कैन differentiate these orbitals on the basis of shape, their size, their energy, their orientation means direction. These characteristics of the orbitals are expressed in terms of three numbers. Three numbers. These numbers are known as quantum numbers. There is one more quantum number which tells about the spin of the electron, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है। स्पिन का मतलब है there is a rotation of the electron about its own axis। उस स्पिन के बारे में जो क्वांटम नंबर हमें इन्फॉर्म देता है, that is called a spin quantum number। So in total we have a set of 4 quantum numbers। हमारे पास सेट है 4 quantum numbers का। These quantum numbers, from these set of 4 quantum numbers, we can get complete information. We can get complete information about all the electrons in an atom। यानी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है from these 4 quantum numbers। So information क्या इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं हमें? We can get information about the location, about the energy, about the type of the orbital occupied by the electron, shape of the orbital, its orientation, that means direction, and also we can get information about the spin of the electron, यानी इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में। सो आप मानिए जो ये क्वांटम नंबर्स है, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, पूरा इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम दीज 4 क्वांटम नंबर्स। जस्ट लाइक द पोस्टल एड्रेस ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्सन के बारे में जो पोस्टल एड्रेस में इंफॉर्मेशन देता है। पोस्टल एड्रेस का मतलब है वो कहाँ रहता है, किस मकान में रहता है, किस गली में रहता है, किस गांव में रहता है, किस शहर में रहता है, एटसेट्रा। सो we have 4 quantum numbers, namely number 1, that is called the principal quantum number. This is principal quantum number. Number 2, we have azimuthal quantum number. This is also called angular momentum quantum number. Number 3, we have magnetic quantum number. Number 4, we have spin quantum number. So first of all, we'll take principal quantum number. I will take principal quantum number. This quantum number, जो principal quantum number है, we denote this quantum number by small n. This n can take values from values 1, 2, 3, 4, 5, so on। ये वैल्यूज दे सकता है। n को 1 वैल्यू हो सकता है, 2 वैल्यू हो सकता है, 3 वैल्यू हो सकता है। What this principal quantum number tells us, ये कौन सी इंफॉर्मेशन में देता है? This quantum number gives us information about the main energy shell, main energy level या principal energy level of the electron। यानी इलेक्ट्रॉन किस मेन शेल में है, उस मेन शेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। सो इट टेल्स अस अबाउट प्रिंसिपल एनर्जी शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। दूसरा इंफॉर्मेशन जो देता है, इट टेल्स अस अबाउट, दैट मीन्स इसका इफ n is equal to 1, that means electron belongs to shell number 1। if n is equal to 2, that means electron belongs to shell number 2। if n is equal to 3, that means the principal shell to which electron belongs is third shell। Exactly, it tells us about the
average distance in a distant electron from the nucleus. Distant electron from the nucleus. यानी nucleus से electron कितना दूर है. That means if n is equal to 1, that means electron is in shell number 1, and if electron is in shell number 2, that means electron is in shell number 2. Shell number 2 is the electron in shell number 2 is away from, is at a more distance, is at a large distance than the electron in shell number 1. Except if electron is in shell number 4, that means the electron is at a large distance than the electron in the shell number 1. So जितना shell number n का वैल्यू ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन दूर होगा from the nucleus. वो nucleus से उतना दूर होगा. Exactly, it tells us information about the energy of the electron in hydrogen atom and the hydrogen like particles. For example, अब अगर हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स होंगे, वहां पर हम लेंगे, वहां पर हम करते हैं एनर्जी, हम डिटरमाइन करते हैं वहां पर ओनली द अप्रोक्सीमेट एनर्जी करते हैं वहां पर डिटरमाइन हम. सो हाइड्रोजन एटम की में हम करते हैं एनर्जी ऐसे, सो दैट इज En is equal to -2 pi square me4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर s स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है. सो E यहाँ पर चार्ज, m हो गया मास इलेक्ट्रॉन, n हो गया, ये हो गया यहाँ पर यही परमाणु नंबर n, दैट मींस शेल नंबर. सो n is equal to 1, अगर n हम मानते हैं 1, इसका मतलब है दिस इज द लोवेस्ट एनर्जी शेल. n is equal to 2 का मतलब है उससे एनर्जी उसकी ज्यादा होगी. अगर हम लेंगे n is equal to 3, उसका मतलब है 2 से ज्यादा होगी एनर्जी उसकी. यानी इलेक्ट्रॉन अगर शेल नंबर 3 में होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, अगर शेल नंबर 4 में होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा. सो जितना शेल एनर्जी, जितना n का वैल्यू ज्यादा होगा, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी मोर, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी. सो इसका मतलब है इट टेल्स अस अबाउट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए particular shell, in a particular man shell. It also tells us about the number of electrons, any maximum number of electrons which any principal shell can have. यानी एक principal shell में कितने electrons हो सकते हैं, we can calculate this and it can give us information about that. For example, if n is equal to 1, हमारे पास फॉर्मूला 2n square. So this 2n square gives us the number of electrons in a particular shell, in a particular man shell. So agar n is equal to 1, that means principal number is 1, that means shell number 1, it has 2 into 1 square, that is 2 electrons. If n is equal to 2, so that means 2 into 2 square ho gaya 2 into 4, that is 8, that means shell number 2 has 8 electrons. Exactly shell number 3, shell number 4 उसी तरह आप निकाल सकते हो, उसमें इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो ये इससे हम निकाल सकते हैं number of electrons in a particular shell. एक और बात है, so it tells us about, we can explain जो वहां पर स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट जो होता है उसको हम एक्सप्लेन, जो वहां पर वो मेन लाइन्स होती है उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस. इफ वी हैव shell number n is equal to 2 and shell number n is equal to 1, यानी electron jumps from shell number 2 to shell number 1, we know that shell number 1 has more energy as compared to shell number 1. जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करता है from shell number 2 to shell number 1, it emits energy. It emits energy in the form of a suitable wavelength. That wavelength appears as a line in the spectrum. वो appear होती है as a line spectrum में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में या किसी एटम के स्पेक्ट्रम में वो एक लाइन अपेयर होती है वहां पर, वही हमें लाइन दिखती है वहां पर. इस तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन और सम अदर एटम ऑफ सम अदर एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सो दिस वाज अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. नाउ वी हैव वन मोर, दैट इज azimuthal और angular momentum quantum number. This angular momentum quantum number, azimuthal, ये second है azimuthal quantum number. This is denoted by small l. इसको हम l से डिनोट करते हैं. हम क्या देखते हैं एक्चुअली जब हम करते हैं स्पेक्ट्रा स्टडी, जब हम करते हैं एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रा स्टडी, स्पेक्ट्रम करते हैं स्टडी, हम क्या देखते हैं वहां पर, इन एडिशन टू मेन लाइन्स,
वहां पर बड़ी बड़ी लाइन्स होती है, ऐसे मेन लाइन्स, फिर उनके अंदर छोटी छोटी लाइन्स भी होती हैं, यानी फाइन लाइन्स होती हैं, फाइन लाइन्स। ये फाइन लाइन्स हमें दिखती है तब जब हम कर सकते हैं हाई पावर स्पेक्ट्रोस्कोप्स यूज। अब ये फाइन लाइन्स कहां से आती है? इट वाज सजेस्टेड दैट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी मैन शेल, जो भी किसी मैन शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, हाइड्रोजन में तो एक ही है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में, शेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। They do not, these electrons do not have the same energy. इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं होती है। This is because they move along different paths, क्योंकि उनका जो पाथ होता है, जो पाथ फॉलो करते हैं, वो अलग अलग होता है पाथ, इसलिए उनकी एनर्जी डिफरेंस होती है। They move along different paths, जब उनकी डिफरेंट पाथ्स होगी, डेफिनेटली उनका एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा डिफरेंट। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम होता है, दिस एक्चुअली रोटेशनल, एक्चुअली जिस तरह हमें होता है लीनियर मोमेंटम, इस तरह होता है जब कोई बॉडी रोटेट करती है, उसका होता है एंगुलर मोमेंटम होता है उसका। जब कोई बॉडी इन स्ट्रेट लाइन मूव करती है, उसका होता है लीनियर मोमेंटम। जब कोई रोटेट करती है, उसका होता है एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम होगा। सो दस विद इन द मैन शेल, जब अंदर अलग अलग एंगुलर मोमेंटम, अलग अलग पाथ होता है, अलग अलग एंगुलर मोमेंटम होता है, अलग अलग एनर्जी होती है। इसका मतलब है विद इन द मैन शेल, मैन शेल जो होगा, मैन शेल के अंदर होंगे फिर सब शेल्स और सब लेवल्स, बोलते हैं सब एनर्जी लेवल्स होंगे, सब शेल्स या सब एनर्जी लेवल्स होंगे। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा? जब मैन शेल्स में सब लेवल्स होंगे, सब लेवल्स होंगे, सब शेल्स होंगे, इसका मतलब है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन जंप्स होंगे, इलेक्ट्रॉन जंप्स वो इंक्रीज हो जाएंगे, यानी सब लेवल से दूसरे सब लेवल में, एक सब लेवल में से दूसरे सब लेवल में, यानी एक सब लेवल में, है ना, एक लेवल में दूसरे लेवल में। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जंप्स जो होंगे वो इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ जंप्स होंगे इंक्रीज। जब नंबर ऑफ जंप्स होंगे इंक्रीज, इसका मतलब है जो इमिशन होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन जब होंगे एक लेवल से आएंगे, सब लेवल से आएंगे दूसरे लेवल में, इसका मतलब है जब नंबर ऑफ जंप्स होंगे इंक्रीज, इसका मतलब नंबर ऑफ लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम होगा इंक्रीज, वहां पर नंबर ऑफ लाइन्स भी होंगे स्पेक्ट्रम में इंक्रीज। अब जो एक क्वांटम नंबर है एल, एक क्वांटम नंबर एल है, यहां पर एक नया कंसेप्ट आ गया सब लेवल का, सब शेल्स का। दिस क्वांटम नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ सब लेवल्स इन द मैन शेल और मैन प्रिंसिपल लेवल, यानी एक मैन शेल में कितने सब लेवल्स है, ये हमें देगा इंफॉर्मेशन, ये एल उसके बारे में। It also tells us about the angular momentum of the electron present in any shell. यह हमें देता है एंगुलर मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के बारे में, मैन शेल में जो प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मैन शेल में, उसके एंगुलर मोमेंटम के बारे में ये हमें देता है इंफॉर्मेशन। सो इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ सब शेल्स इन ए पर्टिकुलर शेल, इन ए पर्टिकुलर मैन शेल, और it also provides information about the angular moment of the electron in the man shell. It also gives us information about the relative energies of the various subshells, यानी मुख्तलिफ subshells का energy, relative energy, यानी we in multi-electron systems we can calculate that energy. That energy depends upon the value of n and l, अगर multi-electron system होंगे, multi-electron system. So it tells us about the relative energies of the subshells की एनर्जी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। It also tells us about the shapes of various subshells, यानी हर एक सबशेल का शेप सेम नहीं होगा, so it tells us about the shapes of subshells present in a particular man shell. Now, for the given value of principal quantum number, for the given value of principal quantum number, L can have values, यानी for a given value of n, यानी n तो आपको पता है that is principal quantum number, and L can have values, n can take values from 0, ये वैल्यू होगा, रेंज होगा इसका वैल्यू from 0 to n minus 1, ये इसमें इसका ये रेंज होगा, इसमें वैल्यूज होगा इसका, यानी for any particular value of n, the L can take values from 0 to n minus 1, 0 to n minus 1. For example, I get it here, for
n इज इक्वल टू 1, अगर हमें n होगा 1, l कैन हैव ओनली वन वैल्यू दैट इज 0, क्योंकि 1 माइनस 1 हो गया 0, सो 0 टू 0 हो गया 0 ही, 0 टू 0 कोई और वैल्यू नहीं होता, वो सिर्फ एक वैल्यू होगा, सो l कैन हैव ओनली वन वैल्यू दैट इज 0, l कैन सिर्फ होगा एक वैल्यू 0 का, सो हर एक वैल्यू ऑफ l जो है ना, इट रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर सब शेल। जब l होगा यानी l का वैल्यू जो होगा ना, l का वैल्यू इट रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर सब शेल। जब l इक्वल 0, इस वाले सब शेल को हम बोलते हैं s सब शेल, ये s सब शेल। अब ये s कहां से आ गया? ये s हमने लिया है एक वर्ड शार्प से लिया है, ये वर्ड शार्प का जो शार्प एक वर्ड है उसका जो पहला लेटर है उसी से लिया है। अब ये शार्प कहां से, हम एक्चुअली दिस वर्ड वी यूज इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये वर्ड यूज करते हैं, उसी का पहला लेटर है s, उसी के नाम पे रखा हमने इसका नाम s सब शेल। s सब शेल के लिए l का वैल्यू होता है 0। इसी तरह अगर n इज इक्वल टू 2, ये परस्पर का नाम 2 है, l को हो सकते हैं वैल्यूज, l के वैल्यूज हो सकते हैं 2, एक होगा 0 एक होगा 1, यहां पर 2 वैल्यूज हो सकते हैं दिस l के। इसका मतलब है अभी हमने बोला l जब होगा 0 ये हो गया s सब शेल, अब l अगर 1 होगा इसको हम बोलते हैं p सब शेल, ये p सब शेल रिप्रेजेंट करता है। ये p कहां से आ गया है? जो ये p वर्ड है, p आ गया वर्ड प्रिंसिपल से लिया गया है। प्रिंसिपल एक यूज करते हैं वर्ड एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसका पहला लेटर लिया गया है p, उसी के नाम पे रखा गया इसका नाम p सब शेल। यानी प्रिंसिपल एक वर्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसका पहला लेटर p, इसके नाम पे रखा गया है इसको p सब शेल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l फॉर p सब शेल? दैट इज 1। अब अगर n होगा 3, सो l को हो सकते हैं वैल्यूज 0, 1 और 2, क्योंकि n माइनस 1 हो गया 3 माइनस 1 हो गया 2, सो 0 2 आते हैं 0, 1 और 2। सो अब अगर l होगा 0, ये हो गया s सब शेल, अब l होगा 1 हो गया p सब शेल, अब l अगर होगा 2 ये हो गया, इसको हम बोलते हैं d सब शेल, नाम रखा गया इसको d सब शेल। अब ये d कहां से लाया गया? d एक वर्ड है डिफ्यूज बोलते हैं उसको, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूज करते हैं डिफ्यूज, उसका पहला लेटर है d, इसी के नाम पे रखा है, इसी टर्म इसी वर्ड से लिया गया है d, ये डिफ्यूज रखा गया इस सब शेल का नाम d सब शेल। अब अगर l इज इक्वल टू 4 फॉर एग्जांपल, सो l कैन टेक वैल्यूज, सॉरी n इज इक्वल टू 4, ये मेन शेल है, अगर ये 4 होगा l कैन टेक वैल्यूज 0, 1, 2, 3, सो 4 वैल्यूज हो सकते हैं उसको। सो 0 तो पता है आपको, अगर l होगा 0 ये हो गया s सब शेल, अगर l इज इक्वल टू p ये हो गया p सब शेल, अगर l इज इक्वल टू d सॉरी l इज इक्वल टू 1 हो गया p सब शेल, l इज इक्वल टू 2 दैट इज d सब शेल, इसको हम अभी बोला d सब। अगर l इज इक्वल टू होगा 3, इसको बोलते हैं f सब शेल, f सब शेल नाम है इसका, f सब शेल, f सब लेवल। ये f कहां से लाया गया है? f एक टर्म हम यूज करते हैं, वहां पर हम वर्ड एक यूज करते हैं फंडामेंटल, सो फंडामेंटल से लिया गया पहला लेटर f। सो इसका मतलब है आप n इक्वल टू 5 आप ले सकते हो, n इक्वल टू 6 भी ले सकते हो, अकॉर्डिंगली l कैन हैव वैल्यूज, l कैन टेक वैल्यूज। सो मेनली अब हमारे पास मेनली जो हम देखते हैं हमारे पास जो सब लेवल्स है, यानी we can find the number of sub levels on the basis of values of l। so सबसे सब लेवल है जो s, उनकी जो एनर्जी है ना, एनर्जी नंबर ऑफ सब इक्वल टू द नंबर ऑफ, अभी हमने देखा अगर आप लोगों को नंबर ऑफ जो सब लेवल्स है किसी लेवल मेन लेवल में कितने सब लेवल्स है, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n। मतलब अगर n होगा 1 इसका मतलब है इसमें सिर्फ एक सब लेवल है, अगर n इज इक्वल टू 2 इसमें इसका मतलब इसमें दो सब लेवल्स है s एंड p, इसमें सिर्फ s ही है, इसमें सिर्फ s, इसमें s और p। अगर n इज इक्वल टू 3 इसमें तीन सब लेवल्स है s p एंड d, s p एंड d। अगर n इज इक्वल टू 4 इसमें चार सब लेवल्स हैं, इसका मतलब है नंबर ऑफ सब लेवल्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर दैट शेल, या इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n नंबर वैल्यू ऑफ n के बराबर होता है। सो n इज इक्वल टू 4 का मतलब इसमें चार सब लेवल्स होंगे s
P, D and F. अब जो इसकी एनर्जी ऑर्डर जो है ना, इनका इन सब लेवल्स एनर्जी ऑर्डर मतलब किसका एनर्जी ज्यादा किसका कम है। एस का सबसे कम एनर्जी होता है एस सब लेवल का, उसके बाद पी का इससे ज्यादा, उसके बाद डी का पी से ज्यादा, इसके बाद एफ का डी से ज्यादा। सो दिस एनर्जी ऑर्डर। सो सबसे कम एनर्जी होती है एस सब शेल की, एस सब लेवल की या सब शेल की, उससे ज्यादा होती है पी की, उससे ज्यादा होती है डी की, उससे ज्यादा होती है एफ की। सो ये इन द सेम प्रिंसिपल शेल, अगर ये सेम प्रिंसिपल शेल में होंगे, यानी किसी प्रिंसिपल शेल में अगर एस पी डी एफ होगा, सारे होंगे, सो एनर्जी ऑर्डर उनका होगा एस का सबसे कम, उसके बाद पी का ज्यादा है उससे, उसके बाद डी का उससे ज्यादा, उसके बाद एफ का उससे ज्यादा। सो हम इलेक्ट्रॉन को आपको बताया, इलेक्ट्रॉन करता है पोजेस एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम करता है इलेक्ट्रॉन पोजेस। इलेक्ट्रॉन हैज एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू इट्स मोशन इन द ऑर्बिटल, क्योंकि ये मोशन करता है ऑर्बिटल में। सो वी कैन कैलकुलेट दिस एंगुलर मोमेंटम ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉम द वैल्यू ऑफ azimuthal quantum number. So angular momentum of the electron, this angular momentum of the electron is because of the orbital motion. So ये होता है square root of L into L plus 1 multiply होता है इसको h upon 2 pi से. So this gives us angular momentum. Here L is the value of azimuthal quantum number, azimuthal quantum number और एंगुलर मोमेंटम quantum number इसको हम बोलते हैं। इससे हम निकाल सकते हैं, मतलब अगर हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन जो हमें, अगर हमें L होगा 0 के बगैर बराबर, 0 का मतलब है द इलेक्ट्रॉन इज इन व्हाट सबशेल, दैट इज इन S सबशेल, S सबशेल में इलेक्ट्रॉन है। सो वी कैन कैलकुलेट, वी विल गेट 0 into 0 plus 1 into h upon 2 pi. So ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 into h upon 2 pi, ये बनेगा 0। सो जो S सबशेल में इलेक्ट्रॉन है, S सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम 0 के बराबर है। इसी तरह आप निकाल सकते हो फॉर L, जिस इलेक्ट्रॉन का L इक्वल टू 1 है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन होगा सबशेल नंबर जिसके वैल्यू है L का 1, दैट मींस p सबशेल में होगा वो, उसका आप निकाल सकते हो एंगुलर मोमेंटम। सो यू कैन कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम द वैल्यू ऑफ azimuthal quantum number. So this was about azimuthal quantum number. So what is the main information which this angular momentum quantum number provides us? It gives us information about the number of subshells in the main shell. Okay, thanks.